start with the solution. Okay, so first of all, check that some parts I already highlighted because because that part shows some constraint to us. Okay, and with the help of that we can find our limitation, our constraints, and our objective. Okay, so check that vitamin M and vitamin W. Okay, so as you know that key in in this question there are two vitamins, vitamin B and vitamin W. Okay, and then there are two different food, F1 and F2. So vitamin M and vitamin W are found in two different foods, F1 and F2. 1 unit of food F1 contain 2 unit of vitamin B and 5 unit of vitamin W. Okay, so food F1 contain exactly 2 units of vitamin V and exactly 5 units of vitamin W. So what F1 contain, that already given. So one food or 1 unit of food F2 contain 4 unit of vitamin B and 2 unit of vitamin W. Okay, so now they provide vitamin contains in food 2 F2. Okay, so food 2 contain 4 unit of vitamin B and 2 units of vitamin W. Okay, after that 1 unit of food F1 and F2 cost 30 rupees and 25 rupees respectively. That means F1 and F2 cost they already provide to us. The minimum daily requirement for a person. Okay, now what is the minimum daily requirement of vitamin B and W? They already given to us. So minimum daily requirement for a person of vitamin V and W are 40 and 50 unit respectively. So assume that anything is excess of daily minimum requirement of vitamin B and vitamin W is not harmful. Okay, so minimum they given 40 and 50, but sometime it may increase. Then it is not harmful for a person. Okay, now find out the optimal mixture of food F1 and F2 at minimum cost which meets the daily minimum requirement of vitamin V and vitamin W. Okay, now they asked to find out the optimal mixture of food F1 and F2 at a minimum cost. That means the cost minimization is our objective. So everyone understand what they given and what we have to do. So देखो ये क्वेश्चन रीड करने के बाद थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा. अब मैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ. ओके, चलो तो अब हम देखते हैं वन बाय वन. देखो पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने फूड्स है, फूड कितने हैं? 2. फूड के नाम दिए F1 and F2. Okay, F1 and F2 are two foods. Now food F1 contain 2 unit of vitamin V and 5 unit of vitamin W. देखो F1 क्या कर रहा है, F1 में क्या है, 2 unit जो है 2 unit of vitamin V and 5 unit of vitamin W. Okay, वन देखो F2 में क्या है, 4 unit of vitamin V and 2 unit of vitamin W. Okay, now 1 unit of food F1 and F2 cost rupees 30 and 25 respectively. यानी कि F1 का cost, यहाँ पे मैं cost लिख लेती हूँ. cost V unit का cost क्या है, सॉरी F1 unit का cost क्या है, 30 rupees and F2 unit cost is 25 rupees. Okay, now next line. The minimum daily requirement for a person of vitamin B and vitamin W are, so minimum daily requirement. Okay, now minimum daily requirement of vitamin V and W. Vitamin B कहाँ है? This is my vitamin V. विटामिन वी का मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है 40. ओके, और विटामिन डब्ल्यू का मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है 50 रुपीज, सॉरी 50 यूनिट्स. ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये आपको पता चल गया कि विटामिन वी एंड विटामिन डब्ल्यू आर आवर टू कंस्ट्रेंट्स. ओके, एंड कॉस्ट should have to minimize. So cost is our objective. So, or we can say that ki cost minimization is our objective. Okay, तो मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मेरा लिख लिया है. अब देखो ये मिनिमम है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर मैंने फूड F1 को X कंसीडर किया, इफ आई कंसीडर X फॉर F1 एंड फूड 2 इज माय Y. देखो
मैंने क्या किया, मेरा जो फूड F1 है उसको मैंने x कंसीडर किया, फूड F2 को y कंसीडर किया। तो अब मुझे क्या देखना है कि मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट मुझे दिया है। यहाँ पर विटामिन वी जो है वो उसका मैंने 2x लेना है, और विटामिन वी का ही मुझे 4y लेना है, यानी कि प्रोडक्ट एक्स में मुझे 2 यूनिट लेने हैं और प्रोडक्ट पाई में 4 यूनिट लेने हैं, और उसका मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितना है, 40 यूनिट्स मिनिमम बोला है। ओके, मिनिमम यानी कि मेरा 40 मिनिमम है। ओके, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x प्लस 4y। अब मुझे यहाँ पे साइन लेना है, मैं एक सिंबल इंसर्ट करती हूँ, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40। ठीक है, क्योंकि मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट इज 40, 40 ये मिनिमम है। ओके, 40 जो है वो मिनिमम है, यानी कि इससे ये 2x प्लस 4y ये बड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 5x, 5x प्लस 2y, अगेन अगेन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्योंकि दोनों का भी मिनिमम बताया है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, क्योंकि 40 एंड 50 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन डब्ल्यू आर 40 एंड 50, मिनिमम 40 एंड 50 मिलना ही चाहिए। तो उससे अगर ज्यादा मिलता है विटामिन बी और विटामिन डब्ल्यू तो हार्मफुल नहीं है ना। ठीक है, अगर उससे एक्सेस भी होता है तो वो हार्मफुल नहीं है, पर मिनिमम 40 यूनिट बी विटामिन के और मिनिमम 50 यूनिट डब्ल्यू विटामिन के मिलने ही चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर जो है मेरा कॉस्ट मिनिमाइजेशन जो करना है मुझे, वो क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे लिखूंगी, z इनटू ब्रैकेट मीन। ठीक है, मुझे क्या करना है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना है। मीन इज इक्वल टू क्या है, 30x, 30x plus 25y. Okay, so everyone understand what are our constraints and what is our objective. Okay, सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं यहाँ पर और एक चीज लिखने वाली हूँ, यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो x है वो x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरा y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, क्योंकि आपको ये पता चला होगा कि x जो है वो 0 से बड़े वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, y जो है वो भी 0 से बड़े वैल्यू को ही इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब आपका जो भी फिजिबल रीजन आएगा, यानी कि जो भी शेडेड रीजन का फिजिबल साइड है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए, है ना, जहां पर x का वैल्यू 0 से बड़ा है और y का वैल्यू 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है, x भी पॉजिटिव साइड पे और y भी पॉजिटिव साइड पे, है ना। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो रीजन है वो हमारा फिजिबल रीजन हमें दिखाने वाला है। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मुलेट तो किया, आफ्टर फॉर्मुलेशन वी नीड some points of x-axis and y-axis and we should have to check that where is our shaded region exactly, है ना। तो फॉर्मुलेशन आशा करती हूँ कि मैं आपको फॉर्मुलेशन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टास्क करने वाले हैं, जहां पर मुझे क्या करना है, इन इक्वेशन को लिखना है पहले, फिर उसकी इक्वालिटी लिखनी है, फिर उसमें से पॉइंट्स निकालने हैं, और फिर मेरा शेडेड रीजन कहाँ पर आ रहा है मुझे चेक करना है। तो मेरा इक्वेशन नंबर 1, so first of all I copy my equation number 1 and then my equation number 2. Okay, yes, because I have two constraints only, vitamin M and vitamin W are my constraints. Okay, so I copied my both equation. Afterwards same equation again I copied in equality column. Okay, अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, यू हैव टू रिमूव योर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू whatever signs are there, unequal signs are there, you have to remove all those unequal signs and replace those signs with equal. ओके, तो क्या करना है आपको, 2x plus 4y is equal to 40। अब मैं क्या करूंगी, मुझे पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ये जो इक्वेशन है मैं एज इट इज कॉपी कर रही हूँ। अब इस इक्वेशन को मुझे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है 2x डिवाइडेड बाय 40 है ना।
हमारा जो लेफ्ट साइड में 40 है, उस 40 से हम क्या करेंगे, राइट साइड के जो भी वैल्यूज है उनको डिवाइड करने वाले हैं ना। 4y डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 40। ओके, तो अब ये इक्वेशन रिप्लेस कैसे होता है, देखो ये इक्वेशन जो है हमारा वो रिप्लेस करेगा, एक मिनट, हाँ, इस इक्वेशन को मैं रिप्लेस कर देती हूँ। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है 2x डिवाइडेड बाय 40। ओके, तो 40 को 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा x डिवाइडेड बाय 2020। yes, am I correct? okay, now plus sign is there, plus sign is there, again 4y डिवाइडेड बाय 40। देखो 40 को अगर 4 से डिवाइड किया तो बचेगा हमारा y डिवाइडेड बाय 10, y divided by 10, okay, equal to now 40 divided by 40, that is 1। अब ये हुआ है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि ये जो है ना, ये इक्वेशन हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आता है। अब देखो आपको x एंड y के वैल्यूज निकालने हैं। अब इसका एक तरीका ऐसा है जहां पर आप x को एक टाइम 0 कंसीडर करो, एक बार y को 0 कंसीडर करो और आपकी वैल्यू आ जाएंगी, या फिर बहुत इजी तरीका ऐसा है, मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले कलर कर देती हूँ। मैं थोड़ा सिंपल, यानी कि इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं करती हूँ, देखो यहाँ x इज इक्वल टू, x के वैल्यू क्या है जो ग्रीन कलर में मैंने किया है, x इज इक्वल टू, x क्या है 20, क्योंकि x बाई 20 है, यहाँ पर 20 प्रेजेंट है, तो y इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि मेरा यहाँ पर y एब्सेंट है, मुझे x का वैल्यू मिलता है दैट इज 20 एंड y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे जहां पर y डिवाइडेड बाय 10 लिखा है, मैं क्या करूंगी, y डिवाइडेड बाय 10 है, इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू जो है मुझे एब्सेंट मिल रहा है और y का वैल्यू जो है वो 10 मिल रहा है। देखो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नो, नो नीड टू सॉल्व इक्वेशन, विदाउट सॉल्विंग दैट इक्वेशन आई गेट माई x वैल्यूज एंड y वैल्यूज। तो आप इस तरह से भी आपके वैल्यूज, आपके पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ आई वांट शेडेड रीजन। Okay, for finding the shaded region, first of all, we have to put x is equal to 0 and y is equal to 0. Okay, if you put x equal to 0 and y is equal to 0 in equation, okay, in equation कहाँ है, ये मेरा in equation है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 2 into bracket 0 plus 4 into bracket 0 is greater than or equal to 40। ओके, तो अभी आप लोगों को ये तो पता है, whenever you multiply any value with 0, that time that value will be 0। okay, so 2 into 0 is equal to 0 plus 4 into 0 is equal to 0, 0 plus 0 is equal to again 0, so 0 greater than and equal to 4 आ रहा है क्या, देखो सॉरी 40, 0 greater than and equal to 40 आ रहा है क्या, yes or no? यस मैम। 0 बड़ा है 40 से, नो मैम, नो मैम, नो, ओके, 0 40 से बड़ा नहीं है। ओके, सो नो, दैट मीन्स आवर शेडेड रीजन इज ऑन नॉन ओरिजिन साइड, है ना, नॉन ओरिजिन साइड ही आएगा ना, यस, नॉन ओरिजिन साइड। ओके, नाउ आई कंप्लीट माय इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया, अब इक्वेशन नंबर 2 के पास आते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारा, उसका हमने इक्वालिटी लिखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी नीड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म्स, दैट मींस वी हैव टू डिवाइड बाय आवर ऑल इक्वेशन बाय 50। ओके, तो मैंने इसको क्या किया, डिवाइडेड बाय 50, अगेन 2y डिवाइडेड बाय 50 and 50 divided by 50। okay, now as you know that ki 5x by 50 is equal to x by 10, क्योंकि 50 से 50 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो क्या आता है, x by 10 आएगा, करेक्ट। ओके, नाउ अब देखो 2y डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 50। अब देखो 50 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 25, सो y by 25 is there। okay, now 50 divided by 50 is equal to 1। okay, ये हो गया हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे
डबल इंटरसेप्ट फॉर्म तो हो गया, अभी मुझे पॉइंट्स निकालने। ओके, yes, for getting those points I only simply use x is equal to 10। देखो मैंने x डिवाइडेड बाय 10 है ना, यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू 10 लिखा, कॉमा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y अब्सेंट है। ये बहुत इजी तरीका है, यहाँ पर आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके अगर इक्वेशन सॉल्व करके निकालना है तब भी यही वैल्यू आने वाले हैं, और इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया तब भी यही वैल्यू आने वाली है। तो आप लोग सोचो कि आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर देखो y/25 के यहाँ पर x अब्सेंट है, पर y डिवाइडेड बाय 25 है, तो मेरा y का वैल्यू कितना हो गया 25। ओके तो ये इजी मेथड है, अगर आपने इक्वेशन सॉल्व करके देखा तो भी यही वैल्यू आने वाली है। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड यू कैन यूज दिस सिंपल मेथड टू फाइंड आउट दोज पॉइंट्स। ओके अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शेडेड रीजन देखना है। शेडेड रीजन के लिए फिर से मैंने ये वाला इनइक्वालिटी वाला जो इक्वेशन था उसमें मैंने x के और y के वैल्यू 0 इंसर्ट करने, तो इसका मतलब 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। आपको ये तो पता है कि यहाँ पर फिर से 0 से मल्टीप्लाई हुआ है पूरा इक्वेशन, तो क्या होगा 0 है ना, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू अगेन 0। और हमेशा 0 आपकी 50 से बड़ा होता है क्या, मुझे ये बताइए, 0 50 से बड़ा होता है क्या? नहीं नो मैम। No, that means again that shaded region should be on नॉन ओरिजिन साइड, है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस इक्वेशन को हमने हाउ टू गेट पॉइंट्स एंड हाउ टू फाइंड आउट दी शेडेड रीजन। यहाँ ये शेडेड रीजन हमारा ओरिजिन पर है या नॉन ओरिजिन साइड पर है, ये हमें मिल गया। दोनों भी इक्वेशन के शेडेड रीजन हमारे नॉन ओरिजिन साइड पे है। ओके सो कीप इन माइंड। नाउ वी ट्राई टू ड्रॉ आवर डायग्राम, है ना। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देखो हमारी इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या है हमारा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। देखो 2x प्लस 4y ग्रेटर देन एन इक्वल टू 40 लिखा है, पर इक्वल टू 40 लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम ये यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं तो हम इक्वल इक्वेशन ही लेते हैं। सो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। देखो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 लिखो, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 50 लिखो। ओके डजंट मैटर। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे पॉइंट्स थे, जो हमने अभी पॉइंट्स लिए हैं, हमारे जो कैलकुलेशन के बाद पॉइंट्स आए हैं वो पॉइंट्स मैंने लिखे। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ये जो है मेरा इक्वेशन नंबर 1, उसके पॉइंट्स पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो तो आपको पहला पॉइंट्स मिल गया, x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 0। देखो y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये वाला y एक्सिस है ना, ये वाला y एक्सिस है, y एक्सिस का 0 और x एक्सिस का 20 है ना, तो वो कहाँ आता है, वो वाला पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा। ओके दिस इज माय पॉइंट, यस दिस इज माय पॉइंट। मिला क्या पॉइंट्स? देखो ये वाला 20 का पॉइंट है ना। अब दूसरा पॉइंट देखो, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 10। सो x एक्सिस का 0, ठीक है, और y एक्सिस का 10, y एक्सिस का 10। ओके तो y एक्सिस का 10 यहाँ पर आता है, ठीक है। ये मिल गए मुझे 2 पॉइंट्स। तो अब ये दोनों भी पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि दोनों भी लाइन को वो टच करेगा। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द लाइन नेम। अब मेरे इस लाइन का नाम क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4050। ओके दिस इज माय लाइन नंबर 1। अब देखो इस लाइन का जो शेडेड रीजन है वो कहाँ है, नॉन ओरिजिन साइड पे है ना। हमने पहले ही देखा है कि नॉन ओरिजिन साइड पे ही इसका रीजन आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ थोड़े से छोटे छोटे लाइन, ये छोटा लाइन ये छोटा लाइन, नॉन ओरिजिन साइड। ओके या फिर आपको बड़े बड़े लाइन चाहिए तो चलो हम बड़े बड़े लाइन ड्रॉ करते हैं, ये नॉन ओरिजिन साइड पे आया। ओके ठीक है, नॉन ओरिजिन साइड पे। चलो अब हम नेक्स्ट लाइन को देखते हैं।
अब नेक्स्ट लाइन में देखो, नेक्स्ट लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स पहले देखो। नेक्स्ट लाइन के क्या है, 5x + 2y इज इक्वल टू 50 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये वाला जो लाइन है उसका फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे 0। तो y एक्सिस का 0 है ना, और यहाँ पर x एक्सिस का 10, तो x एक्सिस का 10 जो है वो यहाँ पर आता है। दूसरा पॉइंट, x एक्सिस का 0, ये वाले एक्सिस का 0 आएगा और ये वाले एक्सिस का 25 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को मुझे क्या करना है, दोनों पॉइंट को ऐसा टच करने वाला एक लाइन ड्रॉ करना है, जो एक मिनट, हाँ मैं फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ। यस, कभी कभी वो प्रॉपर नहीं आता है। यस, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसका भी ओरिजिन, सॉरी शेडेड रीजन जो है वो आपका नॉन ओरिजिन साइड पे है, यानी कि देखो, हाँ मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ ग्रीन वाले लाइन का शेडेड रीजन, ग्रीन वाले लाइन का। ठीक है, देखो ये ग्रीन वाले लाइन का आया। यस, तो इसमें से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है सिर्फ रेड कलर के ही लाइन से ओवरलैप हुआ है ना, और इधर वाला जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के ही लाइन से ओवरलैप हुआ है। Am I करेक्ट? और बचा हुआ जो पार्ट है, यानी कि ये पूरा की पूरा जो बचा हुआ पार्ट है इनफाइनाइट, ये जो है वो पूरा पार्ट हमारे ग्रीन और रेड कलर के लाइन से शेड हुआ है, यानी कि कंबाइन। ओके, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 दोनों का कंबाइंड शेडेड रीजन जो है उसे हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन। ओके, सो आवर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड बाउंड्री है क्या, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, ओके दिस इज माय बाउंडेड रीजन। बाउंडेड का मतलब बाउंड्री फिक्स है, ए बी सी डी, है ना, बाउंड्री फिक्स है। यहाँ पर क्या है, अनबाउंडेड आया है, यहाँ पर बाउंड्री फिक्स ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं अपने यहाँ पर इस लाइन का नाम लिख लेती हूँ पहले। मेरे लाइन का नाम क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। ओके, दिस इज माय सेकेंड लाइन। तो हमारा जो इंटरसेप्ट है दोनों भी लाइन का वो कहाँ है, इंटरसेप्ट दोनों भी लाइन का जो है वो आया है यहाँ पर। एक मिनट, ये यहाँ पर। ओके, सो मुझे पॉइंट फर्स्ट मिला ये वाला ए पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट मुझे मिल जाएगा बी वाला, पर ये जो है ना सी पॉइंट्स मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं पहले क्या करती हूँ, ये मेरे सारे पॉइंट्स को नाम लिख लेती हूँ। ये वाला मेरा ए पॉइंट है, ए पॉइंट। ओके, तो ए पॉइंट कहाँ पर है, ए पॉइंट कहाँ पर है, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 25 है। एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई एक्सिस पर 25 है ना, क्योंकि वी ऑलरेडी ड्रॉ दैट पॉइंट। आप लोगों ने ये पॉइंट ड्रॉ किया है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये जो है बी, बी का जो है मुझे अभी तक पता नहीं है। ओके, वाई, बिकॉज दैट पॉइंट वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ equation. Okay, so after when we get the solution of equation 1 and equation 2, okay, then and that time you can get x and y values. So now this is my C point. Okay, now what is the value of C point, on x axis my value is equal to 20 and on y axis my value is equal to 0. Okay, so we get A and C points, but now we want B points. So with the help of equation we can given 2x plus 4y greater than equal to 40 है ना, और इक्वेशन 2 क्या है, 5x plus 2y greater than equal to 50 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इक्वेशन 2 जो है अगर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा जो 2y जो है ना वो 4y बन जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ताकि मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगी तब मुझे x 4y एंड -4y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वहां पे 0 आ जाएगा और मुझे x का वैल्यू मिल पाएगी। ओके,
So first of all, I multiply my equation number 2 by 2. Okay, multiply equation 1 by 2. ओके, तो अब देखो इक्वेशन 1 को सॉरी इक्वेशन 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है ना 2 से, ताकि मेरा 2y जो है वो 4y बन जाए. ओके, तो मैं क्या करूंगी, मेरा पहला इक्वेशन जो है वो एज इट इज लिखूंगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 40. ओके, इज इक्वल टू साइन लिखनी है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखने. अब देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 10x, है ना, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आएगा 100. ओके, देखो ये वाला हमारा आया है अभी इक्वेशन नंबर 2 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट अवर न्यू इक्वेशन. अब देखो ये तो है हमारा इक्वेशन नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि ये एज इट इज ही रह गया है इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 में चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जो है हमने उससे मल्टीप्लाई कर लिया है. ओके, तो अब हमारा नया इक्वेशन बन रहा है. इस इक्वेशन को आप अपडेटेड सेकंड इक्वेशन बोलो या फिर इक्वेशन नंबर 3 बोलो, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो. सपोज अगर मैंने आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए इसे अगर इक्वेशन नंबर 3 कहा, और ये जो है मेरा ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 है ही. ओके, नाउ आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. देखो मैं भी सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. ओके, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन दैट टाइम यू हैव टू राइट नेगेटिव साइन हियर, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव साइन से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है. अब देखो मैं यहाँ पर जो मैंने लिया है प्लस 4y माइनस 4y, है ना, प्लस 4y माइनस 4y, ये क्या होने वाला है, इट इज गेट कैंसल, बिकॉज प्लस 4y एंड माइनस 4y ये इसका वैल्यू आएगा 0. ओके, तो अभी बचेगा क्या 2x माइनस 10x. देखो अभी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2x माइनस 10x. अब ये मुझे बताओ यहाँ पर 2 है ना, 2 है माइनस 10 है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन. Yes, minus 8 because 10 is the greatest value and greatest value has a negative sign. तो आपको यहाँ पर आएगा minus 8x. Okay, now यहाँ पर आएगा मेरा equal to sign. Okay, again 40 minus 100. अब यहाँ पर भी देखो 40 आएगा minus 100 आएगा. 60. Yes, minus 60. 60. यस करेक्ट, माइनस 60. तो आपका यहाँ पर भी आने वाला है माइनस 60. ओके, नाउ एज यू नो दैट कि बोथ साइड देयर इज अ नेगेटिव साइन, तो इधर का नेगेटिव साइन और इधर का नेगेटिव साइन, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, ये कैंसिल हो सकता है. यस, ये कैंसिल हो सकता है, मैंने कैंसिल कर दिया. ओके, तो अभी बचा क्या है यहाँ पर 8x ओनली. 8x इज इक्वल टू 60. ओके, नाउ as you know that if any value at left side, आप बोलो लेफ्ट साइड, आप बोलो राइट साइड, तो मेरा लेफ्ट साइड जो है वहां पर 8x है और राइट साइड में है 60. तो लेफ्ट साइड में है 8x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उसे उस साइड से अगर मैंने उसको राइट साइड में भेजा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, है ना. यस, डिवाइड करेगा. तो x का वैल्यू मुझे डिवाइड करने के बाद मिल जाता है x इज इक्वल टू 7.5. yes exactly 7.5. अगर yes बेटा 7.5, 60 डिवाइडेड बाय 8. देखो मैं आपको बता भी रही हूँ, यहाँ पर आया है 7.5. ओके, नाउ x value, we get x value. Now put that x value in equation 1 और equation 2. किसी भी equation में आपको value x का put करना है. Put equation x is equal to 7.5 in equation 1 और 2. ओके, इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, आपके कन्वीनियंस से आपको जहां पे इजी लगता है वहां पर डालो. सपोज अगर मैंने इक्वेशन 1 को 1 में अगर x की वैल्यू पुट करनी है तो 2x प्लस 4y मैं पहले लिख लेती हूँ ताकि ये मुझे आसान जाएगा. ओके, अब मैं क्या करूंगी, 2 इनटू ब्रैकेट x का वैल्यू क्या है, हमें क्या रिप्लेस करना है 7.5. ओके, और अभी मैं लिखूंगी 4y is equal to 40.
ओके नाउ मल्टीप्लाई 7.5 विथ 2. ओके तो ये क्या होगा हमारा 15 होगा. 15. यस 15. यस प्लस 4y इज इक्वल टू 40. यस अब देखो ये जो 15 है ये यहाँ पर है प्लस के साथ. ओके तो लेफ्ट साइड से अगर मैं उसे राइट साइड में भेजती हूँ तो क्या होगा वहां पर राइट साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा. यस सब्ट्रैक्ट करेगा. 4y इज इक्वल टू 40 माइनस 15. ओके सो इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा मेरा 25. ओके सो नाउ 4 is going to divide at right side. Okay 25 divided by 4. ओके तो y का वैल्यू मुझे मिल रहा है नया वाला. y का वैल्यू 6. Yes 6.25. okay now I get x values and y values. x का वैल्यू मुझे 7.5 मिला. y का वैल्यू मुझे 6.25 है ना. 6.25 मिला है. चलो अब ये दोनों भी वैल्यूज मुझे लिखने हैं मेरे ऑलरेडी. मुझे यहाँ पे मेरा जो डायग्राम है उस डायग्राम के जो b के पास मैंने वैल्यू जो है क्वेश्चन मार्क किया था वहां पर मुझे b के वैल्यूज लिखने हैं. अब ये मैं लिखूंगी b के वैल्यूज. b इंटू ब्रैकेट b के लिए x का वैल्यू है 7.5 और y का वैल्यू है 6.25. चलो अभी मुझे a b और c ये तीनों भी पॉइंट्स के वैल्यूज जो है मुझे लिखने हैं. क्यों लिखने हैं? क्योंकि अभी मुझे मीन फाइंड आउट करना है ना. मिनिमम फाइंड आउट करना है. कॉस्ट मिनिमम कब होगा ये मुझे चेक करना है. ठीक है तो मैं इसको रफ कर देती हूँ. ये मेरा है z फंक्शन जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था. ठीक है तो मैं वन बाय वन a के वैल्यूज लिख रही हूँ. a के वैल्यूज में आता है a के वैल्यूज चेक करते हैं हम एक बार. a के वैल्यू में x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 25. यस 0 एंड 25 ऐसे लिखो आप लोग या फिर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 25. तो मैं x इज इक्वल टू ही लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने x के वैल्यू में 0 ही क्यों डाला और y के वैल्यू में 25 ही क्यों डाला. ओके तो ये मेरा फर्स्ट वाला हो गया. अब उसके बाद मैं b के वैल्यूज लिख रही हूँ. b के वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं. b के वैल्यू में x है 7.5 और y जो है वो है 6.25. ओके नाउ आई वांट c वैल्यू. c वैल्यू में मेरा क्या है मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा. c के वैल्यू में x 20 है और y 0 है. ओके x 20 x is equal to 20 and y is equal to 0. Okay now I get all 3 points. So put x and y one by one in your z function and find out your minimum cost. तो मेरा ये z function है. आप लोगों को ये तो दिख ही रहा है कि z function कहाँ पर है. ओके तो मैं अभी ये पहले वाले वैल्यूज लिखने वाली हूँ इसमें. हाँ अब ये z is equal to z mean is equal to 30. x का वैल्यू क्या है 0 है. मैंने डायरेक्ट लिखा है. ये x का वैल्यू जो है 0 था वो मैंने डायरेक्ट लिखा है. देन 25 इंटू ब्रैकेट 25. ओके y का वैल्यू क्या है y का वैल्यू 25 है. तो अभी मैं इधर लिखने वाली हूँ 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625. ओके सो माय फाइनल आंसर इज इक्वल टू 625. अब देखो मुझे दूसरे b के वैल्यूज लेकर z फंक्शन लिखना है. z मीन z का मैं मीन करने वाली हूँ इज इक्वल टू 30 इंटू ब्रैकेट 7.5 प्लस 25 इंटू ब्रैकेट 6.25. ओके तो अभी मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वैल्यूज कितने आ रहे हैं. ओके 30 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना है. एक मिनट 30 इंटू यस 7.5 कितना आया 225. नाउ प्लस साइन अगेन 25 इंटू 6.25 25. एक मिनट यस बेटा 6.25 is equal to 156.25. okay yes 156.25. okay now after addition I get 3
81.25. Okay, now again for C points. C points के लिए again I have to check my mean function. Okay, Z minimize करना है मुझे, तो मैं इसके लिए ये चेक करने वाली हूँ. X के वैल्यूज है 20 एंड Y के वैल्यू है 0. ओके, Y के वैल्यू है 0. ओके, तो अभी मुझे क्या आएगा यहाँ पर 600 आएगा, है ना. 600 प्लस 0 आने वाला है is equal to 600. Okay, now you know that we need minimum x values and minimum y values so that we can minimize the cost of our product. Okay, तो यहाँ पर कहाँ पर आ रहे हैं, देखो मिनिमम कहाँ पर आ रहे हैं. ठीक है, दिख रहा है क्या मिनिमम. यस, तो x क्या है 7.5 और y क्या है आपका 6.25. तो अभी फिर से एक बार मैं क्वेश्चन के पास जाती हूँ. ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑप्टिमल मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड फूड F2 एट मिनिमम कॉस्ट विच मीट द डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन W. तो देखो आप लोगों को पता है कि x क्या है फूड F1 है, y क्या है फूड F2 है, यानी कि आप लोगों को कितना F1 लेना पड़ेगा, F1 के 7.5 यूनिट लेने हैं और Y के 6.25 यूनिट लेने हैं, ताकि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन बी एंड विटामिन W की, ये फुलफिल हो जाएगी. ओके, सो X इज इक्वल टू 7.5 and Y is equal to 6.25 for grade minimization. Okay, that is our optimal solution 381.28. Okay, so I thought everyone understand that question. That is very easy question. Okay, with the help of easy method, with the help of easy solution, we get final answer of our this third question. Okay, तो आप लोगों को समझ में आया होगा. Yes, everyone understand ना?